Today we are starting with a very, in fact, interesting poem, Aunt Jennifer's Tigers. Personally, I like this poem a lot, and there have been instances when this particular poem has been taken as literary passage in the CUET also. दो बार आया as a मतलब कि उसमें से poetic devices ऐसे मीनिंग इन्फर करना उसके लिए आया हुआ है. All of your in fact you have 5 poems and for all 5 poems are very good. I just fourth poem thoda skeptic hai, but otherwise all the poems are very thematic. Let us now come to the poem Aunt Jennifer's Tigers, which you must have done already. The poem written by Adrienne Rich. She has always supported, advocated the women empowerment, or you can say she has always raised her voice against women empowerment, women cruelty. So this is a poem written from the point of view of a woman who has undergone dominance by her husband. मतलब जो इसका मेन पहला थीम हम बोलते हैं, तो हमारा पहला थीम जो है वो है आपका मेल डोमिनेंस. एंड ड्यू टू मेल डोमिनेंस व्हाट हैपेंस इज द विमेन फेस स्ट्रगल्स. It's in another word, you can have the word like male chauvinism. Today I was watching a मतलब वैसे ही part में I was watching one Tamil movie in the morning. The theme was, no doubt it was थोड़ा सर पैर वाला बिना मूवी था, but उसमें एक चीज, the same thing had been taken, that the man is dominant though he is good. अपनी बच्चे का, अपनी मदर का, अपनी वाइफ का बहुत बहुत ध्यान रखता है, लेकिन on the other hand he doesn't want anyone to raise his or her voice against him. जैसे घर में कोई कोई कुछ भी होता है तो he wants that he should take the decision. And this is very very common in all the societies. It's not about India, it is about a global issue. तो ये आपका जो थीम है वो है मेल डोमिनेंस, मेल चॉविनिज्म, एंड मैसेज है that the women wants to bring courage to break these shackles, क्योंकि वो इस एक्सप्लॉयटेशन से परेशान हो चुकी है. This has affected her in an adverse manner. जो यहाँ आंट है, शी इज नॉट द एनी कोई कैरेक्टर नहीं है. आंट जेनिफर्स इज द नेम गिवन टू अ वुमन. ये जो आंट जेनिफर्स है, दैट्स अ नेम गिवन टू अ वुमन who has been traumatized by her married life. She is scared, she is submissive, दब्बू है, traumatized है. And contrast, she is making an embroidery which is completely contrast to her character. उसके कैरेक्टर से बिल्कुल ऑपोजिट वो बना रही है, और वो है टाइगर्स. वो है डरपोक, वो है दूसरों के नीचे दबकर रहने वाली. वेरएस टाइगर्स जो होते हैं, दे रिप्रेजेंट कॉन्फिडेंस, फियरलेसनेस, स्ट्रेंथ. तो दोनों जो हैं बिल्कुल ऑपोजिट हैं. आपके पेपर में ये सब कुछ पेपर में आता है. And different symbols have been used like tiger, fearless, wedding band, the shackles, ring, surroundings, ivory needle, something very very light, uncle, the man,
तो यहाँ आपके कई सिंबल्स भी यूज हुए हैं, पेपर में आता है। तो द फर्स्ट इज द थीम इज ऑन द मेल डोमिनेंस एंड सेकेंड इज द मैसेज इज टू ब्रिंग करेज टू ब्रेक दीज शैकल्स. We have a number of poetic devices which we will do later on. The poem is divided into three paragraphs. The first paragraph is describing the tiger which she has made. मतलब वो एक एम्ब्रॉयडरी पैनल पर एक टाइगर बना रही हैं, और वो जो टाइगर्स हैं दे आर जंपिंग. नाउ व्हाट डज इट जंपिंग टाइगर मीन? जंपिंग टाइगर होता है विच इज, मतलब कि जो भागना जानते हैं, जो फियरलेस है. दे हैव बीन कॉल्ड एज, ये जो टाइगर्स हैं उनको बुलाया है एज द इनहैबिटेंट्स ऑफ फॉरेस्ट. ये फॉरेस्ट के इनहैबिटेंट्स हैं, वहां रहते हैं. दे आर फियरलेस, दे डू नॉट फियर एनी वन. सेकेंड पैराग्राफ के अंदर आंट जेनिफर्स को डिस्क्राइब किया है कि she has become very weak, she has become very subtle, that she is not able to pull the ivory needle. जो ivory needle होता है बहुत ही हल्का होता है, it's very light weighted, but she is not even able to, उसके हाथ इतने कमजोर हो गए. Now the reason she gives is कि she has become weak due to the trauma that she has undergone in her married life. उसने अपनी शादी में जो एक्सप्लॉयटेशन सहा है उसकी वजह से वो वीक एंड ओल्ड हो गई है. The third paragraph says that when aunt will not be there, जब aunt की डेथ हो जाएगी, when she would be buried, even in her graveyard you can find the ring. यहाँ पर जो ring है इसके dual meaning है, pun. It has been used as a pun. तो जो पहला है वो है the physical ring which will be there on her body, and second is she would be surrounded by all those hardship. वो जो मुश्किलें उठा चुकी हैं वो हमेशा उसके चारों तरफ रहेंगी. शायद आंट की डेथ हो जाएगी, लेकिन वो जो टाइगर्स हैं, टाइगर्स आर एरोगेंट, टाइगर्स आर मेल शॉविनिज्म, दे वुड ऑलवेज दे. मतलब जो मेल शॉविनिज्म है वो हमेशा ही रहेंगे. So that is the poem Aunt Jennifer's Tigers. So let us do this with the with NCRT. Aunt Jennifer's Tigers prance across a screen. Prance मतलब jump. They are jumping. वो जो है jump कर रहे हैं. Means she is making a panel. She is actually embroidering them. It's on a panel. A jumping tigers. Bright. टोपाज जो होता है वो आपके जेम स्टोन्स. टोपाज इज अ जेम स्टोन. शी कंपेयर्स इट विथ जेम स्टोन्स. उसने यहाँ पर मेटाफॉर यूज किया है दैट दे आर द ब्राइट जेम स्टोन्स. डेनिजन्स, डेनिजन्स का मतलब होता है इनहैबिटेंट ऑफ एनी प्लेस. एंड ये जो है दे आर द डेनिजन्स ऑफ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन. वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मतलब फॉरेस्ट. ये सब फॉरेस्ट में रहते हैं. दे डू नॉट फियर द मेन बीनीथ द ट्री. मतलब वो किसी से नहीं डरते. दे आर अनअफ्रेड. दे आर अनअफ्रेड. they pace in sleek chivalric certainty. मतलब they walk, they move. pace मतलब they move without any fear, with elegance. वो लोग पूरे एलिगेंस के साथ जो है आराम से चलते हैं. सो दिस शोज, जो पहला पैराग्राफ है, दैट शोज द कैरेक्टर ऑफ टाइगर which is also the representation of the male in the society. They are fearless. उन्हें किसी से डर नहीं लगता. The second says Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull. उसके जो हाथ है वो कब कपा रहे हैं. Fluttering means they are shaking. उसके जो हाथ है वो कब कपा रहे हैं.
एंड शी इज नॉट एबल टू पुल दैट आइवरी नीडल, जो आइवरी नीडल है जो कि बहुत ही लाइट वेटेड होता है, इवन शी इज नॉट एबल टू पुल दैट. इट्स अ ट्रांसफर्ड एपिथेट, मेटाफॉर, बोथ. द मैसिव, ये सबसे ज्यादा पेपर में आपके आया हुआ है. द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स अपॉन Aunt Jennifer's hand. मतलब यहाँ पर जो massive weight है, the massive weight is the exploitation that she has undergone, the trauma that she has undergone after her marriage to the uncle. मतलब that sits upon, मतलब यहाँ पर it is personification, लेकिन इसका कहने का मतलब है कि that has made her old and weak before time. When aunt is dead, मतलब शी इज प्रेडिक्टिंग कि इवन अगर आंट की कल डेथ भी हो जाए, हर टेरिफाइड हैंड्स, यहां पर ये जो टेरिफाइड हैंड्स है, दिस इज सिनेक्टॉक, दिस इज सिनेक्टॉक, मतलब यहाँ टेरिफाइड हैंड्स नहीं है, इट इज फॉर हर सेल्फ, विल लाई स्टिल रिंग्ड. द रिंग्ड हेयर इज डबल मीनिंग, आपकी बुक में भी इसका क्वेश्चन है. रिंग्ड इज फन, रिंग यहां पर जो है इट हैज बीन यूज्ड एज अ पन. मतलब रिंग का मतलब है द फिजिकल रिंग, एंड रिंग्ड मतलब चारों तरफ से घिरा होना. विद द ऑर्डियल शी वॉज मास्टर्ड बाय, ऑर्डियल्स मतलब द हार्डशिप दैट शी हैड अंडरगॉन, शी हैड फेस्ड. And the tigers in the panel that she made will go on prancing proud and unafraid. लेकिन वो जो tigers हैं, they would always remain the same, they would be unchanged. यानी कि जो male है, there would be no change in their behavior. उनके behavior में there would be no change. The dominance will always go on. जब तक जो women है, they don't come out of these shackles, men dominance will always be there. So that is the poem Aunt Jennifer's Tiger. इसमें एक क्वेश्चन आता है कि why does aunt make a picture which is completely contrast to her character, क्योंकि उसका कैरेक्टर है सबमिसिव, फियर, और उसने जो बनाया है वो है फियरलेस. एंड दैट इज बिकॉज टाइगर्स जो है दे आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ करेज, एरोगेंस, फियरलेस, एंड शी वांट्स that we must a woman must come out of her shackles. We have a number of what you call as poetic devices in this. आप अगर देखोगे तो इसमें बहुत सारे poetic devices आपको मिलेंगे. For example, they do not fear, they pace. This is anaphora. आपका यहाँ पर जो है anaphora है, जो word they है, it has been repeated. Then अगर आप इसको देखो, fear the men beneath, इसमें आपका जो है एजोनेंस है, बिकॉज द वर्ड, सॉरी, द लेटर ई, द वॉवल ई इज रिपीटेड. देन फिंगर्स फ्लटरिंग, फिंगर्स फ्लटरिंग जो है इट इज एलिट्रेशन. द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड इज ऑल्सो सेनेक्टॉक. यहाँ पर जो अंकल्स वेडिंग बैंड है इट रेफर्स टू द एक्सप्लॉयटेशन, एंड इट सिट्स अपॉन जो है वो पर्सोनिफिकेशन है. Then the tiger, sorry, will go on prancing proud, again alliteration. These are the one. Ringed, pun, contrast aunt and tigers, imagery bright to pass denizens, and of course there is enjambment. यहाँ पर भी आपका enjambment है और यहाँ पर भी आपका enjambment है.
And the rhyming scheme of the poem is AABB. So this is the poem Aunt Jennifer's Tigers. Once again, the same thing. It is divided into three paragraphs. The first paragraph describes the tigers she had made. They have been described as the bright topaz, the gemstones, the dwellers of forest. They have been described as very elegant, unafraid. उसका जो सेकेंड पैराग्राफ है दैट इज कंप्लीटली कंट्रास्ट की आंट जो है वो डरी सहमी रहती है शी इजंट इवन एबल टू पुल द आइवरी नीडल because of the exploitations that she has undergone after her marriage to uncle. The third is when even aunt will not be there. मतलब यहाँ पर उनका कहने का मतलब है कि if the woman is not there, even the woman if she is dead, still you can find the male domination going on. So that is all in the poem, what we call as Aunt Jennifer's Tigers. I'm taking the summary of Lost Spring, a very, very thematic chapter. This chapter is not actually a chapter. It's actually the reality. And ये जो पूरी कहानी है, it's actually not a fiction, but it is the excerpt of अनीस जंग, जिसका उनका खुद का जो इंटरैक्शन था, एनकाउंटर था. हमारा जो इंस्टीट्यूट था उसी के बिल्कुल सामने, बिल्कुल उसकी जो गेट वहां पर, मतलब व्हेन यू क्लाइंब अप, तो ऑन द राइट साइड यू विल फाइंड द, ये वाला जो मतलब स्पेसिफिक है, दिस इज अबाउट दैट एरिया. सीमापुरी, इफ वी लुक, अगर आप सीमापुरी को एक बार ऐसे ही, नॉट अ प्लेस टू विजिट, जस्ट आई एम टेलिंग यू, if you see in the morning, early morning, you'll find that people are carrying the garbage bags. उनके पास garbage bags होते हैं. And the van comes and they have to give that. और ये garbage वो लोग आसपास से, मतलब for the cleaning purpose, गवर्नमेंट जो है वो इनको काम पर लगाती है. And in return they get something. So they are now working in that way. But on the other hand, मतलब कि these people, some of these people are not actual citizens of India. They have been the refugee during the Indo-Bangladesh war. जब पाकिस्तान बांग्लादेश का वॉर हुआ था 72 में, तब ये लोग यहाँ रेफ्यूजी बने थे. जो हमारा चैप्टर है ये वही है. And many of them are also like that. So they have a ration card for getting the grains, but they don't have other facilities. बाकी जैसे schools, if you see, there is no school. यहाँ पर school is not DAV or DPS. यहाँ school means the school which is created by the government, where education is free or nominal. If you see, there is no school, there is no hospital, no hygiene, no sanitation. ये लोग वहां पर रहते हैं, देर इज नो सीवर पाइपलाइन. दे गेट द बेसिक, इनफैक्ट जो इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं वहां पर हुक लगाकर दे टेक द इलेक्ट्रिसिटी, बट दे डोंट हैव द फैसिलिटीज. एंड बिकॉज दे हैव टू सबमिट, दे हैव टू जस्ट डिपॉजिट दैट गार्बेज एंड गेट द मनी, तो ये लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को भी अपने साथ में लगा लेते हैं. एंड आई हैव माई पर्सनल एक्सपीरियंस ऑन दिस. आई हैव माई पर्सनल एक्सपीरियंस ऑन दिस, अ वेरी वेरी पर्सनल. बिकॉज वेन आई वॉज देयर, तो मेरे यहाँ पर जो गार्बेज उठाने आती थी, शी वॉज ऑल्सो अ बांग्लादेशी. एंड शी वुड इन द मॉर्निंग, शी वुड बी, यू नो, शी वुड बी हैविंग अ रिक्शा, मतलब वो खुद चलाती थी उसको. शी वुड बी राइडिंग दैट ठेला वाला रिक्शा. एंड देयर वर 4 or 5 children sitting in that. And then
वन डे आई सॉ कि उनका जो एक छोटा सा बच्चा था ही केम, तो आई एम वेरी पर्टिकुलर, इवन वी आर रियली वेरी पर्टिकुलर, वी डोंट अलाउ एनी चाइल्ड टू वर्क, this I am really very particular. So I scolded her, I said she this boy should not come down, I don't want to give the garbage but I'll not give to the child. So she said no no, school से इसका नाम कट गया ये वो, and then I asked her कि how many children you have, and I was amazed to hear her number of children. उसका एक बच्चा, and she was hardly 35 36, उसका एक बच्चे की शादी भी हो चुकी थी, दूसरे की शादी होने वाली थी, और सबसे छोटा बच्चा 6 महीने का था, and in between there were many. I strictly said no, you will not. Then when she was compelling me, मैंने उसको हटा के I used to throw, because मेरा क्या था, स्कूल पेपर वगैरह होते थे तो I used to आता था ईडीएमसी की गाड़ी, उसी में डाल. But often, and I even used to tell the neighbors वहां पर कि don't allow these children, because these children are the future. And definitely, as a taxpayer, if I'm paying the tax, they are getting the benefits. If they are not earning, ठीक है, उस वक्त में they were a refugee, लेकिन अब वो लोग पढ़ सकते हैं, they can live a life, they can also contribute. But most of the time, it doesn't happen. This story is all about the same, written by Anis Jung, Lost Spring, Stories of Stolen Childhood. The chapter is divided into two different stories, or you can say different account. The first is of Sahib A Alam. जो साहिब ए आलम है, ये वही सीमापुरी का रहने वाला बच्चा है. When Anis Jung met him, he was a rat picker. वो एक रैक पिकर था. दो मतलब कि in the morning he would be waking up around 10:30, he would take up the bag, he would go around, collect the garbage and just enjoy. It was his work. He hailed from Bangladesh. और उसकी मम्मी ने बताया था कि इवन दो दे हैड लॉट्स ऑफ वहां पे फील्ड वगैरह थे, बट ऑन द अदर हैंड they did not get anything, they had to take refuge. अब सबसे बड़ी बात जो आपके बोर्ड का भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसका नाम था साहिबे आलम, और आपके पेपर में भी क्वेश्चन आया है कि व्हाट इज द आयरनी इन हिज नेम. तो द आयरनी इज दैट कि ही हिज नेम इज साहिब ए आलम, यानी कि लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स. आयरॉनिकली ही वॉज अ रैक पिकर, वो एक कूड़ा उठाने वाला था, विच इज कंप्लीटली कंट्रास्ट टू हिज नेम. तो दैट इज द आयरन. अब नरेटर जो है मजाक मजाक में उसे पूछती है कि व्हाई डजंट ही गो टू अ स्कूल. तो वो कहता है कि देयर इज नो स्कूल इन दिस विजिनिटी, यहाँ पे कोई स्कूल है ही नहीं. वो उसको टेस्ट करने के लिए जस्ट पूछती है कि इफ आई मेक अ स्कूल वुड यू कम एंड ज्वाइन. कहता है यस. अब ये बात थोड़ा टाइम हो जाता है, एंड एक दिन साहेब जो है वो भाग कर आता है अनीस के पास, एंड वो पूछता स्कूल तैयार हो गया. वन ऑफ द मोस्ट सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Anis Jung feels embarrassed. She feels that such promises, आपके बुक पेपर में आया क्वेश्चन, such bleak promises are very common in their bleak world. उनकी खाली दुनिया में ऐसे कोरे प्रोमिसेस जो है वो कॉमन है. द पॉलिटिशियंस, द एनजीओ, दोज हु से कि हम लोग इनका मतलब कि इनकी जिंदगी ठीक करेंगे, दे मेक द प्रोमिसेस बट नीदर ऑफ द प्रोमिसेस आर एवर फुलफिल. और उसको इसलिए बुरा लगता है क्योंकि उसने तो जनरल में पूछना चाहा था, बट इन अनदर वे शी हैड एक्चुअली मेड अ फॉल्स प्रॉमिस. ये देखती है कि साहब नॉर्मली चप्पल नहीं पहनते, तो जब ये पूछती है कि व्हाई डजंट ही वियर द स्लीपर्स, तो वो थोड़ा इवेट करता है.
वो कहता है कि हिज मदर हैड नॉट टेकन इट फ्रॉम द अलमीरा, मम्मी ने ऊपर से नीचे नहीं रखा था। ही इज ashamed टू टेल दैट ही इज पुअर। तो एक कॉमन चीज होती है, पुअर लोग या तो पुअर हैं बोलते रहेंगे या तो फिर वो बताएंगे। वो थोड़ा स्वावलंबी था। उसके दूसरे फ्रेंड्स जो थे, दे वर टेलिंग दैट मतलब कि उनके यहाँ पर कल्चर नहीं है। इस पर्टिकुलर एरिया में जो नरेटर है वो बताती है कि बहुत सालों पहले शी हैड मतलब सच एक्सपीरियंस विथ वन ऑफ द अदर सिटी कॉल्ड उडुपी। उडुपी कृष्णा मतलब कि जो आपका कर्नाटका है वहां का एक बहुत ही फेमस एरिया है। इट इज जस्ट लाइक मथुरा ऑफ नॉर्थ इंडिया, श्री कृष्ण भगवान का है। वो कहते हैं कि वहां पर कुछ बच्चे जो पंडित के बच्चे थे वो भगवान से स्लीपर्स के लिए देवर प्रेइंग, एंड ईयर्स लेटर उनको जो है वो चीजें मिल गई थी। मींस दे यूज्ड टू गो टू द स्कूल, तो कहीं ना कहीं दे गॉट दैट ईयर्स आफ्टर दे वर एजुकेटेड। यानी कि वो कहती है एजुकेशन से वो लोग अपने उन डिमांड्स को, उन डिजायर्स को पूरा कर पाए। लेकिन साहेब जैसे इंसान दे कैन नेवर डू। फिर वो देखती है कि एक दिन और देखती है कि साहेब स्टैंडिंग नियर अ गेट, दैट्स अ क्लब, और अंदर जो है एक झूला है। तो साहेब बताता है कि जब कोई वहां नहीं होता तो जो गार्ड है ही अलाउज हिम टू गो इनसाइड दैट क्लब, एंड इसीलिए वो यहाँ आता है। एंड वो देखते हैं कि साहेब ने एक जूता भी पहना हुआ है, एंड दैट एक्चुअली इज अ टॉर्न शू। शायद किसी रिच पर्सन ने उसको फेंक दिया। शी फील्स बैड that there is so much of contrast between the lives of rich and poor. रिच को सारे के सारे फैसिलिटीज उनके घर पर मिलता है। शायद साहेब जैसा कोई इंसान होगा जो अगला धोनी या कोहली होगा, बट डू वी केयर? डू वी हैव दोज फैसिलिटीज? वी हैव द स्कूल्स, बट आर दे प्रोवाइडिंग ऑल दीज थिंग्स? नो, they don't get those chance. That is the pathetic condition of the system. The politicians, they give so many false promises. They promise, sorry, but in reality, nothing happens. ऐसे कई जने होंगे, the one who may become a dancer, maybe a teacher, but hardly do they get these chances. Now, she describes about Seema Puri. आपके पेपर का मतलब कि नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सीमापुरी इज इन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स फार अवे, एक्सप्लेन। पहले ये क्वेश्चन 10 मार्कर में आता था, फिर मतलब इट हैज बीन इन द लॉन्ग क्वेश्चन। सीमापुरी इज इन द पेरिफेरी मतलब ये दिल्ली का हिस्सा है। दिल्ली which is said to be the capital city of India. Delhi, which is said to be one of the most developed cities of India, yet सीमापुरी में आपको बेसिक एमिनिटीज नहीं मिलेंगी। ये जो रेफ्यूजीज हैं, अगर आप इनके घरों को देखते हो तो दे हैव द टेम्पररी शेल्टर। इनके जो अब ये बना लेते हैं, बट दे डोंट बिल्ड इट विद एनी प्रॉपर मटीरियल्स। इनके पास जो मिल जाता है कहीं से इन्होंने उठा लिया, कहीं से किसी ने दे दिया, जस्ट कीपिंग ऑल दोज, दे जस्ट मेक दीज अपने ड्यूल्स बनाते हैं। देर इज नो सीवर, देर इज नो हाइजीन, देर इज नो सैनिटेशन, कुछ भी कोई फैसिलिटीज नहीं। they have the ration card which enables them to vote and just to get the basic thing, but nothing else. और यहाँ पर मैक्सिमम जो पीपल है उनका जो काम है वो है रैक पिकिंग, picking up the garbage and then collecting it and giving it. So there are two connotations. Again, one of the important question ki what are the two different connotations of rack picking? Two different connotations मतलब दो अलग अलग मीनिंग।
फॉर द एल्डर्स इट इज अ सोर्स ऑफ इनकम, उनके लिए तो वही इनकम है. When the more they pick, the more they get. And for the children, it's a wonder wrapped in joy. Why? Because sometimes while they are scrounging the garbage, जब वो लोग garbage को scrounge करते हैं, you need to use these words class 12. तो दे गेट अ रुपी नोट, दे गेट सम टॉयज, उनको कुछ मिल जाता है, इसलिए उनके लिए वो उसको खोजना जो है वो एक वंडर होता है, क्योंकि उनको लगता है उन्हें कोई चीज मिलेगी. बट फॉर द एल्डर्स इट इज जस्ट द सोर्स ऑफ इनकम. So these are the two connotations of rack picking, one for the elders and one for the youngers. वो यही कहती है कि जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं, पॉलिटिशियंस हैं, दे जस्ट शेड देयर, मतलब कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बस वो जब वोट देना होता है तब कहते हैं हम गरीबी हटाएंगे, गरीब, बट उसके बाद ना गरीबी हटती है ना कुछ और होता. इनफैक्ट दिस इज नॉट exactly right for people who are living around also. Such areas become the hub for crime. ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो लोग परेशान होते हैं, even they become, there are people who are criminals. Because when you don't get, you become aggressive. अब थोड़े टाइम के बाद क्या होता है, नरेटर देखती है कि साहिब अब जो है ही इज गोइंग टू अ टी स्टॉल. अब वो रैक पिकिंग नहीं करता है, वो एक टी स्टॉल में काम करता है वहीं पास में, एज अ चाइल्ड लेबर. उसको जो है 800 रुपीज मिल रहा है विथ फूड, विच इज, मतलब ये जब चैप्टर लिखा गया बहुत पुराना है, तो उसके अकॉर्डिंग इट वॉज अ वेरी गुड अमाउंट. येट ही वॉज नॉट हैप्पी. ये आपके पेपर का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम दिस एरिया ये है, he feels the steel canister is heavier than his garbage bag. उसको वो जो केटल है ना वो भारी लगता है. What is that meaning? यहाँ पे the kettle steel canister heavier is not a, मतलब कि physical heavy, it is transferred epithet. It means the steel canister जो है, मतलब कि while picking up the kettle he has now become a child labor. He is now bound. उसको उस पैसों के लिए काम करना पड़ता है. Whereas when he was a garbage picker, he was carefree. वो अपनी मर्जी से करता था. He was not bound. Thus, because of all these मतलब की things, साहिब जैसे कई बच्चे जो होते हैं, they lose their child. वो अपना बचपन खो देते हैं. This was the first part of this chapter, Lost Twin. The second part is about Mukesh. Mukesh जो पहला है, it is because they are refugees. They have been, मतलब कि यहाँ पर they have come from other country. And जो मुकेश का है, because he belonged to a particular caste, underprivileged caste. मुकेश जो है, he is a boy living in Firozabad. Firozabad is next to Agra. अगर आप लोग कभी भी आगरा की तरफ जाते हो तो यू कैन फाइंड फिरोजाबाद. अभी भी इनफैक्ट फिरोजाबाद इज नॉट डेवलप, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट 2024. I just 1 month back only I was passing that area. Not still developed. बट वहां पर क्या है, मैक्सिमम पीपल आर एंगेज्ड इन बैंगल मेकिंग. अभी तो इनफैक्ट दे हैव द दिस मशीन वगैरह बन चुकी है वहां पर, लेकिन पहले तो एवरीथिंग वाज हैंडमेड. तो ये जो बैंगल मेकिंग होती है उसे कैसे बनाते हैं, इट इज नॉट समवेयर इन द ओपन लाइट. ये होता है डंजन के अंदर, एकदम काल कोठरी, जहां पर आपके फर्नेसेस, जो आपके फर्नेसेस हैं उन्हें रखा जाता है. एंड जो ग्लास जो होता है, जो आपके ग्लास, इनको चूरा करके देन दे आर शेप्ड इनटू बैंगल्स. और इसके लिए इनको जो है दे हैव टू वर्क विदाउट सनलाइट, विदाउट एयर, विदाउट वाटर इन द डंजन्स. परहैप्स वो जो डस्ट होता है बैंगल्स का, उसकी वजह से दे इवन गेट द रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स, स्किन एलिमेंट्स. और कभी कभी वो जो ग्लास के टुकड़े होते हैं, इफ दे गो इनटू देयर आईज या सनलाइट से एक्सपोज होते हैं,
so they get blind. ये लोग blind हो जाते. Yet, if you look into the data, lakhs of people, lakhs of children are working here as child labor. Though child labor is now abolished on paper, yet shamelessly you can find them working over there. फिरोजाबाद अगर हम देखते हैं ऑन द मतलब कि अगर हम देखें तो इट इज मतलब वहां से पास में आपके जो है नेशनल हाईवेज वगैरह है, तो कई गाड़ियां वहां से जाती हैं. तो मुकेश जो है ही डज नॉट वांट टू फॉलो द फैमिली बिजनेस. ये उनका ट्रेडिशनल बिजनेस है बिकॉज दे ऑल बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर कास्ट. तो ये जो है दे दिस इज द स्टिग्मा ऑफ देयर कास्ट. ये उनके कास्ट का एक धब्बा है. बट मुकेश जो है ही डजंट वांट टू बिकम मतलब ही डजंट वांट टू कंटिन्यू विद दिस. ही वांट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक. लेकिन वहां पर उनकी जो फैमिली है वो लोग उसको परमिट नहीं करते हैं क्योंकि वहां पे सबका मानना है कि दे मस्ट फॉलो द ट्रेडिशनल बिजनेस वेदर इट इज प्रॉफिटेबल और नॉन प्रॉफिटेबल. अब ये ऐसा कोई बैंगल मेकिंग जो है कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्री नहीं है जहां पे इन लोगों को फायदा हो. वहां हर दूसरा इंसान जो है ही और शी इज एंगेज्ड इन बैंगल मेकिंग and they are not able to sell it somewhere else. There is no facilities for them. वहां जो सरकारी लोग हैं, पॉलिटिशियंस, पुलिसमैन, मिडिल मैन, वो लोग इनको एक्सप्लॉइट करते हैं, इनसे पीनट के भाव में खरीदते हैं एंड दे एंजॉय द प्रॉफिट. जब नरेटर उनके साथ जाती है तो शी लुक्स की फिरोजाबाद की जो गलियां हैं दोनों तरफ जो घर हैं सब टूटे फूटे. किसी में दरवाजा है, कोई दरवाजा आधा टूटा है. मुकेश जो है अपने घर ले जाता है तो वो भी एकदम ऐसा ही है, आधा कच्चा आधा पका हुआ है. बट उसके जो फादर है ही इज नॉट अशेम्ड. इनफैक्ट ही इज वेरी हैप्पी. उनको लगता है कि वो जिस तरीके से आए थे आज वो बैंगल मेकिंग में आकर उन्होंने कम से कम टूटा हो या फूटा हो लेकिन एक छत तो है उनके सर पे. दे आर अनेबल टू मेड इवन मीट देयर डेली एक्सपेंसेस. वो लोग अपने 2 वक्त का खाना भी नहीं खा पाते. वहां मुकेश की दादी होती है और वो बताती है कि उन्होंने कई महीनों से कभी 2 वक्त का पूरा खाना कभी नहीं खाया. कैन यू इमेजिन व्हाट इज द पोवर्टी लेवल देयर. आप सोच सकते हो. एंड उसके जो हस्बैंड है ही हैज लॉस्ट हिज आईज ड्यू टू दिस. लेकिन वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता. वो कहती है इट इज कर्मा, हिज डेस्टिनी. पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है. इट इज कर्मा हिज डेस्टिनी मतलब वो मानते हैं कि वो उसका कर्म है तभी वो अंधा हो गया है. बट दे डोंट वांट टू लीव द ट्रेडिशन. दे वांट टू लिव विद दैट स्टिग्मा इवन दो दे आर नॉट गेटिंग एनीथिंग. अब नरेटर जो है वापस आ रही होती है तो वो मुकेश को कहते हैं कि व्हाई डोंट दे मेक अ कोऑपरेटिव. वो लोग कोऑपरेटिव बनाए सब मिलजुल कर. कोऑपरेटिव में क्या होगा, सब मिलकर रॉ मटेरियल खरीद सकते हैं, सब मिलकर मतलब कि एक जगह पर अपना सामान लेकर जाकर दूसरे शहरों में बेच सकते हैं. तो मुकेश बताता है कि वहां पे हर एक इंसान जो है वो डरा हुआ. एवरीवन इज अफ्रेड बिकॉज इफ दे प्रोटेस्ट then the politicians, the police, everyone will just harass them. In fact, उनको जो है they would be put behind the bars. उनको जेल में डाल दिया जाएगा. और उनको लगता है कि they will not be able to raise their voice. और जैसे उनके जो मतलब कि बड़े लोग हैं they just echo the lament of their elders. ऐसा पेपर में आया हुआ है. they just lament echo the lament of their elders. मतलब जो उनके बड़े लोग रिग्रेट करते हैं वो सिर्फ उसी चीज को दोबारा से रिपीट करते हैं. but they don't have the courage. They have not been given anything in that way. These people are circumvented by the vicious circle of, ये पेपर का क्वेश्चन है, greedy good doers, politicians, साहूकार, पुलिस, जो सिर्फ
मुकेश जैसे लोगों को अपने बेनिफिट के लिए सिर्फ उनका इस्तेमाल करते, बट नो बेनिफिट इज गिविंग टू देम। अब वो, जैसे उसने साहेब आलम से पूछा था, सिमिलरली वो मुकेश से भी पूछती है कि डू यू वांट टू बिकम अ पायलट, जस्ट वांट टू फाइंड कि वो क्या उसके एस्पिरेशंस है। तो मुकेश जो है वो एम्बैरस हो जाता है, ही जस्ट मेक्स अ पैटर्न ऑन द सॉइल, वो मिट्टी की तरफ देख रहा होता है और अपने पैर, क्यों क्यों ऐसा कर रहा है, पेपर में आया था वो वैसा क्यों करता, बिकॉज ही इज एम्बेरस्ड। पायलट बनना, हाउ इट इज पॉसिबल, इज इट पॉसिबल, नो। अगर सिचुएशंस आर एडवर्स तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो वो कहता है कि ही वुड बी हैप्पी इवन इफ ही बिकम्स अ मैकेनिक, बिकॉज उससे उसको डिसेंट इनकम आएगा। दो, उसे मैकेनिक बनने के लिए ही हैज टू वॉक अ लॉन्ग एरिया, मतलब कि वे, जहां जाकर वो सीखेगा, वो तैयार है, इन फैमिली उसको सपोर्ट नहीं कर। वो कहता है कि ही वॉन्ट्स टू बिकम मैकेनिक बिकॉज कार्स यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर जो एरोप्लेन्स हैं दे हार्डली फ्लाई, मतलब वो ऐसा जवाब देता है। इसका मतलब है कि ही इज हैप्पी टू बी अ मैकेनिक because that would help him to fetch him a good income. तो दिस इज अबाउट, आपके बुक के अंदर आप अगर थीम और सब थीम को देखोगे क्लास 12, यू विल सी इट इज अबाउट द लैक ऑफ एम्पैथी, इट इज अबाउट शेडिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जो लोग कहते हैं, वन, एक आपका जो है साहेब आलम, हु इज मतलब कि वो यहाँ पर एज अ रिफ्यूजी आया है, दैट इज बिकॉज ऑफ हिज पोवर्टी, दैट इज बिकॉज ऑफ हिज कंस्ट्रेंट, अपनी मजबूरी। और दूसरा मुख्य उस, भाई वहां पर अब स्कूल्स नहीं है तो कहाँ जाएंगे बच्चे, द गवर्नमेंट सेज दे हैव ओपन बट वेयर आर दे इवन ट्राइंग टू फाइंड। देन सेकेंड इज आपका मुकेश, हु, मतलब कि मुकेश जैसे जो बच्चे हैं, दे आर बाउंड इन द स्टिग्मा ऑफ देयर कास्ट। दो, बैंगल मेकिंग के अंदर इसमें इन्होंने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल दिए हैं कि जब वहां पर वो जाती है तो शी सीज वहां पर एक लड़की होती है जिसका नाम है सरिता। और वो जो सरिता है, शी इज मेकिंग द बैंगल्स, मतलब वो यहाँ पे शायद उनके साथ में इनको हेल्प करती है। तो वो कहती है कि सरिता जैसे जो लड़कियां होती हैं जो आज बैंगल बना रही हैं एंड दे इवन डोंट नो इट्स सिग्निफिकेंस, इंडिया के अंदर बैंगल इज वेरी सिग्निफिकेंट। वी, मतलब कि हम उसको मैरिज के साथ में जो है को रिलेट करते। वी हैव डिफरेंट कलर्स ऑफ बैंगल्स। एक मुझे बहुत अच्छा सा पोयम है रिटन बाय सरोजनी नायडू, तो उसके अंदर होता है कि रेड कलर मतलब कि इज फॉर द ब्राइड, येलो कलर इज फॉर द यंगस्टर्स, देन आपका जो पर्पल कलर होता है वो मिडिल एज के लिए होता है। सो वी सिंबलाइज बैंगल एंड इट्स कलर्स टू अवर डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ। लेकिन उसके बावजूद वो कहती है एक दिन आएगा, उसकी शादी हो जाएगी, वो इन्हीं बैंगल्स को पहनेगी, लेकिन शी विल नेवर नो द सिग्निफिकेंस। उसी तरीके से वो कहती है कि वहां पर जब वो गई थी तो मुकेश की जो भाभी थी, शी वॉज देयर, बट वेन द एल्डर्स केम, घर में मतलब बड़े लोग बाहर आए, तो शी वॉज टेकिंग अप द व्हील, उसने घूंघट काट रखा था। वो कहती है कि हम आज भी ये लोग इतने ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, and because of that tradition, because of their stigma of their caste, they are not able, they have not been given any benefit which they are bound to। जब हम बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज की, पॉलिटिशियंस की, पॉलिटिकल राइट्स की, तो ओनली द राइट विच दे हैव इज राइट टू वोट, because they are not educated, they cannot raise their voice, they don't know what rights they have। एटलीस्ट स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, बेसिक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट्स हो, तो मे बी व्हेन वी टॉक अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट, तो ये दो चीजें हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं, बट इन्हीं से जो पॉलिटिशियंस हैं या फिर जो मिडिल मैन है ये लोग भागते हैं, बिकॉज उससे उनका फायदा कम हो जाए। बट
ऑन द ओवरऑल, चाहे वो मुकेश हो, चाहे वो साहिब आलम हो, साहिब आलम और मुकेश जैसे कई बच्चे अपनी पूरी जिंदगी खत्म कर देते हैं, दे लूज देयर चाइल्डहुड। आपके पेपर के अंदर एक क्वेश्चन आता है, जस्टिफाई द टाइटल द लॉस्ट स्प्रिंग। इट हैज कम, मतलब नाउ व्हाट इज द जस्टिफिकेशन ऑफ दिस थीम? लॉस्ट, खोया हुआ, समथिंग विच इज नॉट फाउंड। एंड स्प्रिंग होता है द सीजन व्हेन फ्लावर्स ब्लॉसम, जब आपके फूल जो बर्ड्स होते हैं वो फूल बन के खिलते हैं। एंड यहां पर इट इज द मेटाफॉर फॉर द स्टोलन चाइल्डहुड, दैट इज आपका चाइल्ड लेबर। लॉस्ट स्प्रिंग मीन्स जैसे आपके स्प्रिंग सीजन में इफ द फ्लावर्स डोंट ब्लूम, they would not if the buds don't bloom, they would not become flowers. Similarly, childhood जो है, if it is bound to be as a worker, अगर उन लोगों को काम करना पड़ रहा है as a child labor, that means they have lost their childhood, the time when they should be happy, द टाइम व्हेन दे शुड बी केयर फ्री। उनको इन चीजों के बारे में हाँ, सबको होता है, ऐसा नहीं है, ऑल द पीपल हैव टू वरी, बट ये नहीं है कि आज अगर मैं कमाऊंगा नहीं तो खाऊंगा क्या। देयर इनकम शुड नेवर बी, यू नो, समथिंग विच इज अ कंस्ट्रेंट। दैट इज वाई हमारे यहाँ पर व्हेन द, मतलब कि जब हम बोलते हैं तो हम बोलते हैं 14 years तक का एजुकेशन, 15 years ऑनवर्ड इफ दे वांट दे कैन वर्क। दैट इज वाई वी से मतलब कि 14 years तक चाइल्डहुड, बट 14 years तक की भी हम बोलते हैं सर्व शिक्षा अभियान। हमारे पास इतने सारे अभियान हैं, बट एक्चुअली हैव दे रीच्ड? Is each child getting those benefits is the question. So that is all about in this chapter, Lost Spring, the stories of stolen childhood by Anis Chand. A very thematic chapter.